Muscle contraction causes the ribs and the sternum to move, and as a result, the diameters of the chest increase. We talked about how the external intercostal muscles cause movement of the ribs upwards and outwards, and because of that, the lateral diameter changes. We also talked about how these ribs are attached to the sternum in front, and they lift the sternum, which is hinged at the top but free at the bottom. So it's like a pump handle movement. So 3 diameters of the chest change. Vertical diameter because of diaphragm, which we will talk today. Lateral diameter from side to side because of the ribs. And the front back diameter, the technical name for the front back diameter is anteroposterior diameter. So that is what we started, and today we'll continue that discussion. The muscles which move the rib cage, and as it says here, the most important muscles which move the rib cage are external intercostals, and we had a detailed discussion about this yesterday. There are 3 other muscles which move the which move the rib cage apart from external intercostals: sternocleidomastoid, anterior serratii, scalene. Let me demonstrate. Okay. The external intercostals were these muscles connecting the one rib to the other. All like put hand on your chin and try to move to the side. You will see a muscle becoming prominent. Can you see this muscle? And do this, everybody, like put a hand on one side of the chin, right? And try to move the face with the resistance of the hand. And you will feel a muscle becoming prominent. It is going from the base of the skull to the top of the clavicle, this hard bone, and it attaches to the sternum. This is sternocleidomastoid. Sterno because it attaches to the sternum below, and mastoid because at the base of the skull, behind the ear, you will feel a bony protrusion, which is called the mastoid process. And it goes from there till the sternum. Therefore, this muscle is called the sternocleidomastoid, and it will pull on the sternum. Obviously, when it will pull on the sternum, sternum is attached to ribs. It will also enhance the movement of the ribs and the sternum. Anterior serratii are providing additional contraction for the upper upper ribs. And similarly, scalene are also attached, further muscles which are attached to the upper 2 ribs. At this point, since I don't want to confuse you with too much anatomy, just remember that scalenes and anterior serratii are attaching to the ribs, the upper ribs, and sternocleidomastoid is getting attached from the base of the skull to the sternum. And you can understand that if these muscles are pulling on the sternum and the upper ribs, they will be helping external intercostal muscles in their work. That is to raise the chest up and out and raise the sternum forward and up. आपको एक diaphragm नजर आ रहा है. Diaphragm basically chest को abdomen से separate करता है. हमारे chest तो ribs जिस chamber को enclose कर रहे हैं, एक पिंजरा है which is actually the rib cage, इसलिए इसको cage कहते हैं. जैसे cage की होती है ना डंडे, और उसके थ्रू आप देख सकते हो इसके डंडे हॉरिजॉन्टली पड़े हैं, तो ये लेकिन इट्स लाइक अ केज. इस केज के अंदर आपके हार्ट है, लंग्स हैं, और एब्डोमेन के अंदर क्या है, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, दूसरे ऑर्गन्स हैं, और इन दोनों सेक्शंस ऑफ द बॉडी को इंटरनली एक शीट सेपरेट करती है मसल की, उसको कहते हैं डायाफ्राम. अब ये डायाफ्राम के इधर नीचे आपकी इंटेस्टाइन्स होंगी, लिवर होगा, स्प्लीन होगा, जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, और डायफ्राम के ऊपर हार्ट होगा और लंग्स होंगे. चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट कर दिया. अब ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है ना डायफ्राम रिलैक्स्ड फॉर्म में, ये एक मसल है और ये साइडों से सारा अटैच्ड है रिब्स के साथ, दरमियान में फ्री है.
इसको आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? जस्ट लाइक ट्रैम्पोलिन देखिए आपने, जिसके ऊपर जंप मारते हैं कार्टून्स में। ये एक मसल है और ये साइडों से सारा अटैच्ड है रिब्स के साथ, दरमियान में फ्री है। इसको आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? जस्ट लाइक ट्रैम्पोलिन देखिए आपने, जिसके ऊपर जंप मारते हैं, कार्टून्स में अक्सर होती है। ऊपर से यस मैम। एक सॉलिड सर्कल के साथ एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक शीट होती है, उसके जंप मारे तो इंसान बस ऊपर नीचे जंप ही मारता रहता है। देखिए ये ना, यस जैसे एक रिंग है और उसके साथ वो इलास्टिक मटेरियल लगा हुआ है, इसी तरह ये जो डायफ्राम है ना, ये अपनी एजेस के साथ रिब्स के साथ इसकी अटैचमेंट है, इसके एजेस की, और दरमियान में ये फ्री है। ठीक है, और इस वक्त ये रिलैक्स फॉर्म में है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये फ्लैट हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो आपको पता है जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब आपको ये डिफरेंट लगेगा थोड़ा सा, कि बॉयज खास तौर पे उनके मसल डेवलप होते हैं कि जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपको लगता है अब ये मोटा हो रहा है, और जब रिलैक्स करते हो तो वो फ्लैट हो जाता है। नॉर्मली हमें ऐसे ही फील होता है ना, है ना? यस यस लेकिन यस क्योंकि मैम। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये जो मसल है ना, ये दो बोन से अटैच्ड है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बोन्स को खींचेगा और खुद छोटा सा हो जाएगा। लेकिन आपका जो डायफ्राम है ना, ये भी एक स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल का मतलब कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरली। जिस मसल को हम वॉलंटरली कंट्रोल कर सकें, मेरा दिल चाह रहा है मैं फिंगर्स हिलाऊं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आंखें खोलूं बंद करूं, मैं वॉलंटरली इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ। ये स्केलेटल मसल्स हैं। कुछ मसल्स हैं जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं करते। मसलन हमारी इंटेस्टाइन में मूव हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हमारे जो हार्ट बीट कर रहा है, हम कंट्रोल तो नहीं कर सक रहे, वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स। जो वॉलंटरी मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अब डायफ्राम भी एक स्केलेटल मसल। ये कैसे? अब लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जो आम मसल हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो मोटा होता है, और रिलैक्स करें तो वो फ्लैट होता है। ये डिफरेंट है। जब हम, क्योंकि ये रिलैक्स फॉर्म में है, ये साइडों से अटैच्ड है, ये इसलिए डिफरेंट है कि ये साइडों से अटैच्ड है। जब ये ढीला होके ऐसे पड़ा हुआ है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ये स्ट्रेच करेगा, और फिर रिलैक्स होगा तो ये ढीला पड़ जाएगा। डायफ्राम ऐसे करके ढीला सा पड़ा हुआ है क्योंकि ये साइडों से अटैच्ड है। व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल फ्लैटन। इस वक्त डायफ्राम रिलैक्स है, तो ये ग्लोबुलर हुआ है, ऊपर की तरफ आया हुआ है। अब हमने दो किस्म के डायमीटर्स डिस्कस कर लिए हैं। हमने चेस्ट का साइड टू साइड डायमीटर डिस्कस किया है, और उसको कहते थे लैटरल डायमीटर। हमने चेस्ट का फ्रंट टू बैक डायमीटर डिस्कस किया है, कहते थे एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर। अब हम बात करेंगे वर्टिकल डायमीटर, ऊपर से नीचे। यहां से चेस्ट की अपर पार्ट, बेस ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है चेस्ट, और जहां पे एब्डोमेन स्टार्ट होता है वहां पे चेस्ट खत्म हो जाता है। जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ रिलैक्स होके पड़ा होगा, ये आपका वर्टिकल डायमीटर है, जो मेरा एरो ट्रेस कर रहा है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया और ये नीचे हो गया, देखो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है जब ये रिलैक्स्ड फॉर्म में था डायफ्राम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैटन हुआ तो ये नीचे हो गया। अब वर्टिकल डायमीटर बढ़ गया। और एक्चुअली जो हम अब आप ऐसे सांस लेने की कोशिश करो कि आपका पेट बाहर आए। देखो सांस लेने के दो तरीके हैं, एक तो हम चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, और एक और तरीका है सांस लेने का जिसमें हम पेट को बाहर निकालते हैं। अब सब एब्डोमेन के ऊपर हाथ रखें और एक सांस ऐसा लें जिसमें आपका एब्डोमेन बाहर आ रहा है। गो। Feel your abdomen going out when you inhale. सबने किया? यस आपका यस जब मैम। आप सांस लिया आपने, तो आपका एब्डोमेन बाहर आया ना। वो क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने सांस लिया तो हमारा
डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हुआ, उस डायाफ्राम ने नीचे इंटेस्टाइन्स पे पुश किया और इंटेस्टाइन्स ने बाहर की तरफ प्रेशर दिया और हमारा पेट बाहर आ गया। जो हमारे, क्योंकि नीचे तो लेग्स आ जाती हैं, लेग्स वो तो फिर आपका एब्डोमेन खत्म हो जाता है ना, और बैक साइड पे आपका वर्टेब्रल कॉलम है और ढेर सारे मसल्स हैं। तो जब आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो जहां से वो सॉफ्ट होगी वहां से बाहर निकलेगी। तो जब डायाफ्राम एब्डोमेन के कंटेंट्स को कंप्रेस करेगा नीचे की तरफ, तो एब्डोमेन बाहर को निकलेगा। इसको कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। जबरदस्त। अच्छा, अब आप सोचो कि जब आप एक्सपायर कर रहे थे नॉर्मल ब्रीदिंग में, डीप ब्रीथ करो, आपको एक्सपिरेशन के बारे में क्या लगता है? आपको लग रहा है कि इसमें कोई मसल इस्तेमाल हो रहा है? जैसे आप सोचो एक बलून है, आपका जो है ना चेस्ट, उसको एक बलून से तशबीह देते हैं। लेट मी स्टॉप शेयरिंग सो आई कैन टॉक टू यू फेस टू फेस। ओके, हमने एक बलून है ना, लंग इज लाइक अ बलून, हमने एक बलून को लेके जोर लगा के फुलाया, तो उसको फुलाने में हमारी एफर्ट लगी। इसी तरह लंग्स को फुलाने में, इंस्पायर करने में एफर्ट लगती है। उसके लिए हमने डायफ्राम को यूज किया, उसके लिए एक्सेसरी मसल्स को यूज किया। उसके बाद आप जब अपने बलून को छोड़ देते हो तो वो खुद ही अपने इलास्टिक रिकॉइल की वजह से उसमें से हवा निकल जाती है। ऐसा ही होता है ना? यस मैम, ऐसे ही होता है। तो लंग्स भी जो होते हैं ना, हमें उनको सिर्फ इंस्पायर करने के लिए, उनको हवा से भरने के लिए हमारी एफर्ट लगती है। उसके बाद हम सिर्फ मुंह खोल देते हैं और हवा जो है वो, लंग्स का भी एक इलास्टिक रिकॉइल होता है, क्योंकि जैसे उसको रबर बैंड को आप स्ट्रेच करें, उसने वापस आना ही आना है। इसी तरह बलून के अंदर आप हवा भरते हैं, वो हमने उसकी इलास्टिसिटी से स्ट्रेच किया हुआ है, उसने वापस इलास्टिक रिकॉइल करना है। लंग्स आर ऑल्सो इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, इलास्टिक टिश्यू से वो बने होते हैं। जब हम उनको एक दफा फुला देते हैं और उसके बाद हमने सिर्फ उसकी ओपनिंग को खोलना होता है। जैसे अगर हम सांस लेके रोक लें, यहां से अपना थ्रोट बंद कर लें, तब तो वो एक्सपैंडेड रहेंगे। जैसे ही हम अपने थ्रोट को खोलेंगे, अब आप सब ये करो, सांस लेके रोको, आपका चेस्ट एक्सपैंडेड है। अब आप अपने थ्रोट को खोल लो, तो आपकी एयर्स में, आपकी एयर जो है वो खुद ब खुद निकल जाएगी, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक रिकॉइल। जस्ट लाइक अ बलून फुला के आपने सिर्फ इसको आगे से खोल देना है और वो बलून खुद ब खुद कोलैप्स कर जाता है। तो नॉर्मली देयर इज नो मसल यूज्ड इन एक्सपायरेशन, ये याद रखना। अगर कोई आपसे ट्रिक क्वेश्चन पूछे, नेम द प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन एंड द प्राइमरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन, तो आप जवाब दोगे द प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन इज डायफ्राम, बट देयर इज नो प्राइमरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन बिकॉज इट इज नॉर्मली अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस, ये एक्टिव नहीं है, इसमें कोई हमारी एक्टिविटी नहीं लग रही, हमारी कोई एफर्ट नहीं लग रही, ऑटोमेटिकली हो रहा है, पैसिवली हो रहा है। हाँ, जब आप भाग रहे होगे और आपने देखो बलून को, आप अगर आप चाहते हो कि बलून तेजी से हवा निकाले तो आप उसको प्रेस कर देते, तब वो तेजी से हवा उसमें निकलती है। ऐसा ही है ना? इसका मतलब कि जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि हमने रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ानी है क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हम चाहेंगे कि लंग्स जल्दी से एम्प्टी हो जाए। उस केस में मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन भी आ जाते हैं, नॉर्मली नहीं आते। और वो कौन से मसल्स हैं? लेट मी टॉक अबाउट देम। ये डायग्राम आपको बता रही है पैसिव एक्सपायरेशन के। नॉर्मली आपका नीचे डायफ्राम जो स्ट्रेच था, वो जब रिलैक्स हो जाता है उस वजह से आपका लंग्स को पुश पड़ता है। फिर आपका जो चेस्ट एक्सपैंड हुआ होता है उसका रिकॉइल होता है, और अंदर स्टर्नम भी जो आगे गया होता है उसका भी रिकॉइल होता है, क्योंकि यहाँ ये इसकी अटैचमेंट रिब्स के साथ कार्टिलेज की वजह से है। और लंग्स का इलास्टिक रिकॉइल तो है ही। तो जब हम ब्रीद इन करना छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली इलास्टिक रिकॉइल की वजह से आपकी पैसिव एक्सपायरेशन होती है। लेकिन अगर हम चाहें कि लंग्स को जोर से, हम चाहते हैं कि जल्दी से एक्सपायरेशन हो जाए, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम ना सिर्फ चाहते हैं कि डीप ब्रीदिंग हो बल्कि रैपिड भी हो। जब आप बहुत सोचो, आप इमेजिन करो बहुत तेज तेज भाग रहे हो, तब आप की ब्रीदिंग जो होती है वो डीप भी होती है और उसका रेट भी बढ़ जाता है। उसके लिए
आपके मसल्स जैसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है ना, ये फॉरवर्ड आ रहे हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स आगे से पीछे आ रहे हैं। ये देखो इंटरनल इंटरकॉस्टल के फाइबर्स जो है ना, ये फ्रंट से बैक जा रहे हैं, तो ये रिब्स को नीचे की तरफ खींचेंगे। आप अब आप ये एक्सरसाइज करो, अपने एब्डोमेन के ऊपर हाथ रखो और जितनी भी हवा आपके लंग्स के अंदर है उसको फोर्सफुली निकालने की कोशिश करो, ऐसे करके जोर से लंग्स ऐसे करके अपने एब्डोमेन को प्रेस करो, ये हाथ, और जोर से एक्सपायर करो। आपको फील हुआ कि आपका एब्डोमेन सख्त हो जाता है? किस किस को फील हुआ? यस मैम, है ना? हो जाता Yes, है। ma'am. हाँ, अब आप ये देखो, ये आपका जो एब्डोमेन का मसल है रेक्टस एब्डोमिनस, ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके 6 पैक्स बन जाते, वो यही है, ये 6 पैक्स बने हुए हैं रेक्टस एब्डोमिनस के। अगर जिसके बहुत डेवलप हो जाते हैं उसके स्किन के नीचे से नजर आना शुरू हो जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इनको ये वो जो ऊपर से अपेयरेंस होती है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल की वजह से होती है। ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स जो है ना, नीचे तो एब्डोमेन को कवर कर रहा है, लेकिन ऊपर ये रिब्स की बेस पे अटैच्ड है, स्टर्नम की बेस पे और रिब्स की बेस पे। ये नीचे से खींचेगा, आपकी रिब्स को भी नीचे खींचेगा और स्टर्नम भी जो ऊपर उठी हुई थी और आगे आई हुई थी उसको नीचे खींचेगा। इंटरनल इंटरकॉस्टल्स भी खींच रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी खींच रहे हैं, तो आपकी रिब ऐसे करके जो एक्सपैंड हुई थी वो सारी कोलैप्स कर जाएंगी। और एक तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब केज को तो नीचे करेंगे। अच्छा, दूसरा जब आप देखो, आप मसल्स अपने एब्डोमेन के कॉन्ट्रैक्ट करो, एब्डोमेन अंदर जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करो सारे मसल्स, हाथ रखो, एब्डोमेन अंदर जाता है। Yes, ma'am. जब Yes, एब्डोमेन ma'am. अंदर जाएगा, जैसे मैंने बताया था, नीचे तो लेग्स हैं, पीछे बैक है, डायफ्राम एक आपकी फ्लेक्सिबल शीट है, तो वो सारे जो कंटेंट्स होंगे ना डायफ्राम की तरफ पुश करेंगे। डायफ्राम मजीद लंग्स को पुश करेगा और वर्टिकल डायमीटर मजीद कम होगा। तो रेक्टस एब्डोमिनस के ये 2 फंक्शन हो गए, एक तो उसने रिब केज को और स्टर्नम को नीचे पुल किया, दूसरा जब वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एब्डोमिनल कंटेंट्स को अंदर की तरफ पुश करेगा, तो ये कंटेंट्स ऊपर डायफ्राम की तरफ पुश करेंगे, और जब डायफ्राम को पुश करेंगे तो डायफ्राम मजीद ऊपर जाके वर्टिकल डायमीटर को कम कर देगा। और इस तरह से जब हमें रैपिड एक्सपायरेशन करनी होती है तब हमारे एक्सेसरी मसल